اب میں آواز دوں گا محترم جناب مولانا عظیم اشرف، ہیڈ آفس کوآرڈینیٹر آل انڈیا علماء مشاہد بورڈ دہلی، کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے اظہار خیالات فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ علی نبیہ وآلہ وصحبہ اجمعین، وبعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا عظیم صاحب، میں علماء کرام سے گزارش کروں گا معذرت کے ساتھ کہ ہمارے جو وی آئی پی مہمان حضرات آ رہے ہیں ان کے لیے جگہ کا انتظام ہم کو خود کرنا ہے۔ گیلری ان کے لیے رکھی گئی ہے، اس کا خیال رکھیں گے، جب وہ آئیں گے تو سیٹ کا خیال رکھیں گے۔ ان العلم خلیل المومن، صدق اللہ العظیم۔ حاضرین، کافی دیر سے یہ پروگرام چل رہا ہے اور لگ بھگ ایک ہفتے سے آپ لوگوں تک یہ آواز جا رہی ہے۔ موضوع چمنیاولی میں حضور اشرف ملت دعوت برکاتہ القدسیہ کے ہاتھ سے الاشرف سینٹ پبلک اسکول کی سنگ بنیاد رکھی جائے گی، جو آنے والے دور میں ایک یونیورسٹی کی شکل میں آپ کے سامنے سنبھل میں بچوں کی آبیاری کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کے اندر الگ الگ فیکلٹیز ہوں گی، ڈپارٹمنٹس ہوں گے، ہر فیکلٹیز میں اپنا اپنا ایچ او ڈی ہوگا، اپنا اپنا ڈین ہوگا، اور اسی اعتبار سے جو اس کے اصول و ضوابط ہیں اس کے اعتبار سے اس کو چلائے گا۔ میں نے ایک حدیث کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بے شک علم انسان کا اچھا دوست ہے، مومن کا اچھا دوست ہے۔ اس حدیث کریمہ سے واضح ہے اگر ہم اپنا دوست اور اپنا وفادار قریبی ساتھی کسی کو مانتے ہیں تو وہ علم ہے، کیونکہ وہ وفادار اس لیے ہے کہ ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان کرنے میں ہمارا ساتھ دیتا ہے، اور کس راستے پر چلنا ہے وہ ہمارا انتخاب بن کر ہم کو صراط مستقیم پر، سیدھی راہ پر چلنے کی راہ دکھاتا ہے۔ آج ہم یہاں جو جمع ہوئے ہیں یا جو بھی حضرات اس پروگرام میں محنت کر رہے تھے، شروع سے وہ ہمارے حسان بھائی ہوں، ڈیزائننگ کر رہے تھے، رات کو 12:30 بجے تک جاگتے تھے اور اس کی ڈیزائننگ کرتے تھے فلیکسی وغیرہ کی، دعوت ناموں کی، وہ مولانا عبدالقادر صاحب ہوں، مولانا سلمان راغب صاحب ہوں، مولانا عرفان اشرفی ہوں، قاری سخاوت صاحب ہوں، یہ تمام لوگ، قاری مشرف وغیرہ، قاری سلیمان کو، مولانا شمیم صاحب وغیرہ، یہ لوگ اس لیے لگے ہوئے تھے کہ ہماری زندگی تو کٹ گئی، ہم نے تو اپنی زندگی کے جو سال دیکھ لیے تھے، کسی نے 30 سال، کسی نے 25 سال دیکھ لیے، لیکن جو دنیا کے اندر ابھی آیا ہے یا اب آئے گا تو اس کو ایسی تربیت ملنی چاہیے، ایسا علم ملنا چاہیے، اس کو ایجوکیشن سے اس طرح آراستہ کرنا چاہیے جس طرح ہم 7ویں 8ویں صدی کے اندر ہمارا دور دورہ تھا، ہمارے نام کا ڈنکا بجتا تھا، اگر کسی کو قالین بنوانی ہوا کرتی تھی تو وہ تلاش کرتا تھا اچھا کاریگر کہاں ملے گا، اس کو کاریگر نہیں ملتا تھا تو کوئی مسلم کاریگر اٹھا کر لاتا تھا، اور وہ مسلم کاریگر اپنے ہاتھوں سے جب اس قالین کو بناتا تھا تو اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا کرتا تھا اور بتاتا تھا، سنو اللہ کے رسول نے تو فرمایا علم تمہارا بہترین دوست ہے، تمہاری نالج بہترین دوست ہے، تو یہ میرا وہ ساتھی ہے جہاں میں چاہوں گا وہاں پر اپنا نقش چھوڑ جاؤں گا، اپنا ہنر چھوڑ جاؤں گا، اپنی پہچان چھوڑ جاؤں گا۔ اس لیے تو ابن تیمیہ نے کہا تھا تمام لذتوں میں اگر کوئی لذت ہے تو وہ علم کی لذت ہے۔ کسی فلسفی نے کہا تھا خیالات کی جنگ میں بہترین ہتھیار اگر ہے تو وہ کتاب ہے۔ کسی انگریزی کے فلسفی نے کہا تھا
अंग्रेजी के अंदर तुम्हारा सबसे बेहतरीन वेपन अगर कोई है तो वो एजुकेशन है, क्योंकि एजुकेशन आपका वो काम करती है। आप आज परमिशन के लिए तरसते हैं, हमें जुलूस निकालना है, हमें प्रोग्राम करना है, लेकिन सोचो अगर उस कुर्सी पे तुम बैठे होते और तुम्हारा भाई अगर एजुकेशन के लिए परमिशन के लिए जाता और तुम्हारी क्वालिफिकेशन इतनी होती, एजुकेशन इतनी होती कि तुम उस कुर्सी पे बैठे होते, तो जरा सा तहम्मुल नहीं करते, बल्कि बगैर सोचो फिक्र इसलिए उसको परमिशन दे देते कि ये नबी की बात करेगा और उस नबी की बात करेगा जिस नबी ने इस दुनिया में आकर सबको रहना सिखाया है, जिस नबी ने इस दुनिया में आकर पड़ोसी के हुकूक बताए हैं। वो किसी मजहब व मिल्लत का नहीं बल्कि इंसान होना चाहिए। इसी नबी के बिरादरे अम्मे मोहतरम हजरत अली ने जब मालिक नश्तर को गवर्नर बनाकर भेजा तो कहा था सुनो अस्कर, मैं तुम्हें गवर्नर बना रहा हूं, लेकिन याद रखना जब वहां जाओ तो ख्याल रखना वहां एक तो तुम्हारे ईमानी भाई होंगे, दूसरा तुम्हारे इंसानी भाई होंगे, तो तुमको ईमानी भाई का जिस तरह ख्याल रखना है वहीं अपने इंसानी भाई का भी ख्याल रखना है। हुजूर अशरफ मिल्लत ने वहीं से इस चीज को उठाया और आकर संबल में सबसे पहले उसकी पहल की कि अल अशरफ साइंस पब्लिक स्कूल के नाम से आज संगे बुनियाद रखना चाह रहे हैं। चिन्यावली मौजे को शायद मुरादाबाद या मुरादाबाद के अतराफ के लोग जानते थे, लेकिन मेरी गारंटी है जब से इसका ऐलान हुआ है वो हिंदुस्तानी में नहीं बल्कि दुनिया के अंदर जहां आलिम मशाइख बोर्ड को जाना जाता है, सुना जाता है, वहां वह चिन्यावली गांव को जाना जाता है, पहचाना जाता है। कल मैंने एक लाइव की थी यहाँ से जाकर आलिम मशाइख बोर्ड के पेज पर जाकर देख लीजिए, 40,000 भी उसके पार है इस वीडियो के। तो वो सिर्फ मुरादाबाद के लोगों ने नहीं देखा बल्कि दीगर लोगों ने देखा है। आप सोचिए अभी इल्म का दरख्त आपको यहाँ लगाने की बात की जा रही है, लेकिन जब इल्म का दरख्त आपको यहाँ लगा दिया जाएगा और उसके फल दुनिया के अंदर फैलेंगे तो एएमयू को जिस तरह याद किया जाता है, जामिया का जिस तरह नाम आता है, जैनी को जिस तरह लोग पुकारते हैं, दीव को जिस तरह लोग नाम लेते हैं, दीव का जिस तरह मानो को पुकारते हैं, उसी तरह इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं सेंट अशरफ पब्लिक स्कूल को भी पुकारेंगे और चिन्यावली को भी। जी बिल्कुल सही बात। क्यों? हम नहीं जानते थे अलीगढ़ क्या है, ताले मशहूर होंगे हिंदुस्तान में ताले मशहूर, लेकिन जब एएमयू का बच्चा निकलकर साइंसदान बनता है तो लोग जानते हैं अलीगढ़ पर सर सैयद ने मेहनत कर अगर कोई दरख्त लगाया था तो वो एएमयू था, जिससे आज बच्चे उर्दू के प्रोफेसर बन रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी कर रहे हैं, कोई सोशियोलॉजी जानना है तो कोई फिजिक्स का माहिर बनना है, कोई बायोलॉजी का, कोई टेक्नोलॉजी का माहिर बनकर निकल रहा है, तो कोई पर्शियन में पीएचडी करके इतिहास को दोबारा लोगों के सामने रखता है, तो कोई अरबी को पढ़कर अरबी में पीएचडी मास्टर करने के बाद इस्लाम के सही उसूल और उनके बुनियादों को निकाल कर बताता है। जब वो हमने मदरसे से सफर करकर कई यूनिवर्सिटी की तरफ निकले तो हमने बताया इस्लाम ने जो रवादारी का दर्ज दिया है वो ये दर्ज है, आओ हमारे साथ चलो, हम तुम्हारी भी तरक्की चाहते हैं और अपनी भी तरक्की चाहते हैं, आओ मिलकर हाथ उठाकर एक दूसरे की तरक्की में हाथ बढ़ाते हैं। बहुत अच्छा। हुजूर अशरफ मिल्लत भी एएमयू के प्रोडक्ट है, मदरसे के प्रोडक्ट है। आज उनके दिल में ये जो दर्द उठता है, कसम खुदा की निजी मजलिसों में बैठकर जब संजीदगी से बात होती है तो बाज दफा उनके ख्यालात सुनकर आंसू निकल आते हैं। इस सीने में इतना दर्द कौन का, इतना दर्द कि अपने बच्चों का ख्याल नहीं, बच्चे बीमार हैं, फोन पर अयादत हो रही है, डॉक्टर से कहा जा रहा है, लेकिन राजस्थान की सरजमीन पर खड़े हैं, इदारे की जमीन देख रहे हैं, इदारा बनाना है, एक यूनिवर्सिटी राजस्थान को देनी है, तो कभी संभल की सरजमीन पर खड़े होते हैं। हमारे दरमियान डॉक्टर रशीद अंबर साहब और डॉक्टर ज़िबुल हक तशरीफ ला चुके हैं, शहर संभल के वो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं।
जो अपने पेशे से, जो इस्लाम ने कहा था आप खिदमत करो, आपको जो हुनर दिया गया है, इस्लाम की तालीम है, जब तक दुनिया में कोई बीमारी नहीं उतरती उससे पहले बीमारी का इलाज उतार दिया जाता है। ऐ मुसलमानों उठो, बीमारी आने से पहले इलाज ढूंढो। जैसे ही पता चले तो डॉक्टर साहब वो काम कर रहे हैं, कौन की खिदमत कर रहे हैं अपने पेशे से। लोग आते हैं, उनसे मिलते हैं। मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर जिब्रील साहब से और डॉक्टर रशीद अनवर साहब से, इतने प्यारे अंदाज से मिले हमारे दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमान। हकीकत में कायल हो गए इन दोनों हजरात का कि मुझको नहीं जानते थे, नहीं मुझको पहचानते थे। मौलाना सलमान राग़िब लेकर गए और उन्होंने मुलाकात करवाई और उनका एक गिफ्ट जिब्रील साहब का कलम था, उन्होंने वहां पर भी बताई इस कलम की अहमियत है, इस कलम को समझिए। मैं इतनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ था, हमारे मेहमान आना शुरू हो गए हैं। आप बस इस चीज को याद रखिए, ये यूनिवर्सिटी बनेगा और बनेगा हमारी मेहनतों से, बनेगा हमारे जज्बों से, बनेगा हमारी लगन से, बनेगा हमारे ज़ौक़ से, बनेगा हमारे शौक से। तो हमें काम करना है अपने ज़ौक़ और शौक के साथ, हमें लगन से काम करना है। अफवाहें उड़ाई जाएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, लेकिन यकीन कीजिए कि आले रसूल ने आपसे वादा किया यूनिवर्सिटी बनाने का, तो वो आले रसूल जरूर बना कर देगा। अगर वो आले रसूल ठान ले किसी के नाम को मिटाना है तो सफाई हस्ती से नाम मिटा देता है। अगर आले रसूल जान ले इसको कुछ देना है तो वो दे देता है। मैं बस इतनी बात कहना चाहता हूँ, ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड ने अल अशरफ ट्रस्ट के तहत ये जो बनाने का ठाना है, आप उसका साथ देते रहिए, आप उसके साथ रहिए। हमारे दरमियान मुफ्ती ज़ाहिद सलामी साहब आ गए हैं, जो संभल के रहने वाले हैं, लेकिन अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर में पढ़ाते हैं। मुफ्ती ज़ाहिद सलामी साहब का मैं इस्तकबाल करता हूँ, मुफ्ती ज़ाहिद सलामी साहब का मैं इस्तकबाल करता हूँ। हजरत आगे तशरीफ ले आए, हजरत आगे तशरीफ ले आए मुफ्ती ज़ाहिद सलामी साहब। अल जामिअतुल अशरफिया का नाम हम सुनते हैं, मैं एक चीज और वजाहत कर दूं, अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर का नाम सुनते हैं, याद रखना हुजूर अशरफ मिल्लत के नगरदादा नहीं। आप समावी हजरात बैठ जाएं, जो जिन हजरात को कुर्सी मिली हुई है वो हजरात बैठ जाएं। जब हजरत आएंगे तो ऐलान किया जाएगा, हजरत जब तशरीफ लाएंगे ऐलान किया जाएगा, आप बेकरार ना हो। अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर का नाम सुनते हैं, मिसबाही हजरात फला मिसबाही फला मिसबाही फला मिसबाही, लेकिन उस मिसबाही से पहले अगर किसी ने अपनी करनी की थी तो वो हजरत के ही दादा थे, नगर दादा हुजूर आला हजरत अशरफी सैयद अली हुसैन आला हजरत अशरफी मियां अली रहमतुल रिजवान, जो आपके दादा थे, उन्होंने भी मुबारकपुर में इसी तरह के गांव के अंदर एक इमारत की संगे बुनियाद रखी थी अपने मुरीदों के दरमियान, और कहा था मैंने अपनी करनी कर दी, अब तुम अपनी करनी करो। कच्छ नियावली वालों, मुहिद्दीनपुर वालों, अहले संबल वालों, सुनो, आज हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ अशरफ मिल्लत अपनी करनी कर जाएंगे। आपको अपनी करनी करनी है, आपको अपनी करनी करनी है। आपको किस तरह इस इदारे को वैसे ही बनाना है जिस तरह के हमारे AIMU का नाम लिया जाता है, जिस तरह जामिया का नाम लिया जाता है। हमारे मजहबी तबके में अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर का नाम लिया जाता है, और इसका अल अशरफ साइंस पब्लिक स्कूल का नाम जब लिया जाएगा तो यूनिवर्सिटी के उसमें नाम लिया जाएगा। मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा शहर संभल